اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ جس سمت چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگودوں میں، کہ پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، رکھتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا کو پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ قابل احترام جناب برادرم سجاد صاحب، منتظم جمعیت طلبہ عربیہ صوبہ خیبر پختونخوا، ذمہ داران جمعیت طلبہ عربیہ مولانا عبید اللہ خلیل صاحب، میرے انتہائی عزیز طالب علم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں یہاں کے نظم جمعیت طلبہ عربیہ کو اور صوبائی نظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور پھر اس میں مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھ سکوں۔ جمعیت طلبہ عربیہ ہم سب کے لیے ایک سائبان درخت کی طرح ہے اور ایک ماں کی گود کی طرح ہے اور دھوپ میں چھاؤں کی طرح ہے۔ ہماری پہچان، ہماری تعمیر، ہماری تربیت، ہمارا دنیا کے اندر مقصد زندگی سے آشنا ہونا، یہ جمعیت طلبہ عربیہ کی مرہون منت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو ٹاپک مجھے گفتگو کے لیے دیا گیا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، ایک ہوں مسلم۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو اس کی وحدانیت کے قائل ہیں اور جو دنیا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، اور جب تک اس کی یکتائی کو نہ مانتے ہوں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر اس کی یکتائی میں شک رکھتے ہوں تو کافر کہلائیں، اور اس رب پر ایمان لانے والے بندے جب یہ اقرار کر لیں کہ وہ رب ایک ہی ہے، تو اس کی عملی تصویر صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ حرم کعبہ میں جائیں اور وہاں پر احرام میں سب پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی لباس میں ہوں اور پھر سب ایک ہی جیسے مناسک حج اور عمرہ ادا کریں اور سب اس کے گھر کا طواف کریں اور سب ایک ہی کلمہ بلند کریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یعنی کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی یورپ سے آیا ہے، کوئی عربی ہے اور کوئی اجمی ہے،
कोई गोरा है और कोई काला है, कोई किसी मसलक और फिरके का है, कोई अमीर है और कोई गरीब है, सभी एक मकाम पर पहुंचते हैं, एक लिबास में एक जैसे मनासिक अदा करते हैं और सब अपनी जुबान से एक ही कलमा अदा करते हैं और वो कलमा उसकी वहदानियत का कलमा है। और फिर जब वो कलमा अदा कर रहे होते हैं, इन्नल हम्दा व निअमता, कि अल्लाह तारीफें भी आपके लिए हैं, दुनिया के अंदर जो नेमतें अता की हैं वो भी सब आप ही ने अता की हैं। और फिर इसका नतीजा ये है कि हम ये भी इकरार करते हैं लका वल मुल्क, ये कायनात आपकी है, ये मुल्क आपका है, यहां पर बादशाहत आपकी है, यहां पर हुकूमत आपकी है। और जब इतने सारे इकरारात वहां पर इंसान कर लेता है और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान वहां पर नहीं पहुंच पा रहा होता, वो अपने अपने मकाम पर और अपने अपने देश में और अपनी अपनी जगह पर बैठकर अपने अपने मुल्क और अपने अपने मोहल्ले में वही इकरार दोहरा रहा होता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्या अल्लाह मैंने ये इकरार किया है कि आप ही वाहिद और यकता हैं और आप ही को हाकमियत जचती है और आप ही मेरी पूरी जिंदगी के फ़आलुल लिमा युरीद है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह है व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया है और जुल कुव्वतिल मतीन है और तमाम कुव्वत और ताकतों का सरचश्मा है। तो जब एक बंदा वो कलमा पढ़ता है और कलमा अदा कर लेता है तो उसके बाद हम उसके बारे में ये तसव्वुर करते हैं कि ये एक उम्मत बन गया है। अल्लामा इकबाल ने जो इस शेर में हमें समझाया है वो सबसे पहली बात यह है कि एक हूं मुस्लिम, यानी पूरी दुनिया का मुसलमान, वो किसी रंग से, किसी इलाके से, किसी तबके से ताल्लुक रखता हो, वो गोरा हो या काला हो, वो अरबी हो या अजमी हो, वो अफ्रीका का रहने वाला हो या और यूरोप का रहने वाला हो, जब वो ये कलमा अदा कर लेता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक मिल्लत बन जाता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब पाक में इन्नमल मुमिनून इख्वा, के मुसलमान और मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं और भाई भाई होकर ये एक इमारत की मानिंद है। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी मिसाल ऐसे कि जिस तरह इमारत की ईंटें होती हैं और उनको आपस में जोड़ जोड़ कर रखा जाता है, फिर एक बड़ी इमारत बनाई जाती है। जब उनको आपस में जोड़ जोड़ के और मिला के रखा जाता है, उनके दरमियान में मसाला भरकर एक बड़ी इमारत बनाई जाती है, तो वो बड़ी इमारत दरअसल बड़ी नहीं होती, वो एक एक को जोड़कर बहुत बड़ी इमारत बना ली जाती है। इसी तरह आपने फरमाया कि मोमिनीन की मिसाल है कि ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। कोई अफ्रीका में रहता हो, कोई अमेरिका में रहता हो, कोई सऊदी अरब में रहता हो, कोई हिंद और सिंध में बसता हो, इन सब का एक कलमे की वजह से ये ताल्लुक है कि ये एक जिस्म की मानिंद है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, के मुसलमान मुसलमान का भाई है, का जसदिन वाहिदिन, एक जिस्म की तरह। आपने गौर किया है कि ये जिस्म होता क्या है? मैं और आप, कभी हमारी टांग में दर्द हो, हमें रात को नींद क्यों नहीं आती? नींद का ताल्लुक आंख से है, आंख के साथ नींद आती है। लेकिन अगर टांग में दर्द हो तो नींद क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि जसदिन वाहिदिन, एक जिस्म है और आंख टांग के दर्द को महसूस करती है। इसी तरीके से अगर फलस्तीन में, इराक में, अफगानिस्तान में और दुनिया के किसी हिस्से में भी मुसलमानों को सताया जाए, मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाए, हम पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी मौजूद हो तो हम उनके लिए क्यों तड़पते हैं? इसलिए कि हमने कलमा एक पढ़ा और फिर हमारे नबी ने हमें एक जिस्म की तरह बनाया और फिर जिस्म की तरह बनाकर भी ये बता दिया कि आप एक दूसरे से ला ताल्लुक नहीं रह सकते। मेरे अजीज भाइयों, आज जब मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, आप इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आप इस दरवाजे से बाहर जाएं और लोगों से जाकर पूछें कि आप कौन हैं, तो वो सबसे पहले आपको कहेगा कि मैं देवबंदी हूं। फिर अगर कोई दूसरा हो तो वो कहेगा कि मैं बरेलवी हूं। अगर कोई तीसरा हो तो वो कहेगा कि मैं आले हदीस हूं, मैं हयाती और ममाती और मैं पंजपीरी हूं। मेरे अजीज भाइयों, अगर आप इस मुल्क से निकल जाएं
और थोड़ा सा बाहर जाकर आप आज मुसलमानों से पूछें कि आप कौन है, तो वो आपको सबसे पहले अपना मुल्क बताएगा। फिर आप कहें इसका यह मतलब नहीं, आप बताएं कि आप कौन है, तो फिर वो आपको कहेगा कि मैं अरबी हूं या अजमी हूं। अगर आप देखें कि मुसलमान ही अपने गोरे और काले की बुनियाद पर तफरीक किए हुए, लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं बल्कि इससे भी आगे ये है कि एक ही मुल्क में और एक ही शहर में और एक ही सूबे में बसने वाले लोगों को अगर आप मिले तो वो आपको कहेंगे कि हम पंजाबी, मुहाजिर और पठान हैं, हम देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस हैं। यहां पर लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम, यहां पर इलाकाइयत की बुनियाद पर तकसीम, यहां पर गोरे और काले की बुनियाद पर तकसीम, यहां पर अमीर और गरीब की बुनियाद पर तकसीम, यहां पर हुक्मरान और रियाया की बुनियाद पर तकसीम है। और हकीकत यह है कि जिस दीन का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है वो दीन मुझे और आपको ये सिखाता है कि एक वो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, आप जरा अपने उरूज की तारीख उठाकर देखे कि मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आया था, जिस बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ था उसकी इस्मत तार-तार हुई थी, उस पर एक हिंदू राजा ने सितम किया था। आज मुसलमानों का था, वो मुसलमान अरबी थे, उनका मोहम्मद बिन कासिम से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब जुल्म की खबर वहां पर पहुंची तो फौरी तौर पर अरब मुसलमानों का एक काफिला निकला। पूछने वालों ने कहा कि ये क्यों निकला, तो उन्होंने कहा कि फला दुनिया के एक कोने में जिसको हिंदुस्तान कहते हैं वहां पर सिंध एक इलाका है, उस इलाके के एक राजा ने और एक हाकिम ने एक मुसलमानों के हज पर जाने वाले काफिले को रोककर वहां पर एक मुसलमान बहन से ज्यादती करते हुए कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे साथ इसलिए ज्यादती हो रही है। लिहाजा एक के साथ ज्यादती हुई थी, मुसलमान लश्कर लेकर निकले और फिर दुनिया ने देखा कि पूरे इलाके की काया पलट गई। आप तारिक बिन जियाद को जानते हैं कि वो वहां पर लश्कर लेकर गया था, न वहां पर मुसलमान से ज्यादती हुई थी, न वहां पर जिस बहन की इस्मत दरी हुई वो मुसलमान नहीं थी। लेकिन क्योंकि दुनिया के अंदर इस्लाम का निजाम कायम था, उस निजाम के अगेंस्ट, उसके मुतजाद और मुखालिफ में अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर जुल्म हुआ तो मुसलमान अपना लश्कर लेकर निकले। फिर सिर्फ इतनी बात नहीं, आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हैं, आपने उसका नाम सुना है। मैं और आप अपने बच्चों का नाम उसके नाम पर रखना आज क्यों फख्र महसूस करते हैं? मैं और आप उसकी तारीख पढ़ना, उससे अपना रिश्ता जोड़ना क्यों फख्र महसूस करते हैं? इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है कि जब उम्मत पर जवाल आया था, किबला अव्वल छिन गया था, मुसलमान उम्मत में तफरीक पैदा हो गई थी, मुसलमान इसी तरह कट और फट गया था, मुसलमान हाकिम अय्याशी में और ऐश इशरत में पड़ गए थे, ये किबला अव्वल मुसलमानों से छिन गया। उस जमाने के अंदर रीजनाल्ड जो यूरोप का एक हाकिम था, उसकी जो ममलिकत थी, उसकी जो रियासत थी, वहां से मुसलमानों का एक काफिला जा रहा था, उस काफिले को उसने लूट लिया। काफिले को लूटने के बाद जब उसे पता चला कि ये मुसलमानों का काफिला है तो उसने वही काम किया जो काफिर हमेशा करता है। उसने एक मुसलमान बहन को थप्पड़ मारा था, उसने चीख कर कहा कि मैं मुसलमान हूं और मेरी ये आवाज मुसलमानों तक पहुंचाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी करीब में एक मुल्क में जंग कर रहा था, ऐन काफिले के दौरान में उसको जब ये खबर पहुंची कि रीजनाल्ड ने मुसलमानों का एक काफिला लूटा, फिर वहां पर एक मुसलमान बहन को थप्पड़ मारा। जब उसने थप्पड़ मारा तो इस बुनियाद पर मारा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले रही थी, वो उसके सामने कलमा पढ़ रही थी। इस कलमे की बुनियाद पर रीजनाल्ड ने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारकर कहा कि बुलाओ मोहम्मद को, वो आकर तुम्हें छुड़ा ले। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह बात पहुंची, उसने वहीं से काफिला तैयार किया। 1 महीने की तैयारी के बाद वो रीजनाल्ड के आमने सामने हुआ, दोनों लश्कर टकराए। बज़ाहिर उनका कोई मुकाबला नहीं था, सलाहुद्दीन का लश्कर भी थोड़ा था, उसका असलहा भी थोड़ा था, उसके घोड़े भी कम थे, लेकिन अज़म था, हिम्मत थी और फिर सबसे बड़ी ईमान की कुव्वत थी। जब वो लश्कर टकराया और रीजनाल्ड को शिकस्त हुई तो सुल्तान ने पुकार कर कहा था कि किसी को छोड़ो या ना छोड़ो,
लेकिन रीजनाल्ड को मेरे पास लेकर आना। मैं इसको वादा याद दिलाऊंगा कि जिस दिन इसने कहा था उस बहन को कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुम नाम लेती हो, अगर वो तुम उनका नाम लेती हो तो वो आकर तुम्हें बचा ले। आज मैं उसको बताऊंगा कि जिस दिन उसने थप्पड़ मारा फिर खबर मुझ तक पहुंची, मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं उसके सामने आकर बताऊंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ो, मैं उसका सबसे छोटा खादिम हूं, मैं तेरा सर उड़ाऊंगा। और फिर यही हुआ कि जब रीजनाल्ड उसके लश्कर को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भागा, मुसलमानों ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके फिर ये इसके सामने लाया गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप जानते हैं कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है कि आज आप यूरोप के ईसाइयों की, यहूदियों की, गैर मुस्लिमों की किताबें पढ़े, वो आपको कहेंगे कि अगर गैरत का कोई नाम था वो सलाहुद्दीन अय्यूबी था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में खयानत भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि किसी मां ने इससे ज्यादा गैरतमंद बंदा नहीं जना था। क्यों? ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जब सलीबी जंगें शुरू हुई और यूरोप को इस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शिकस्तें दी तो पूरे यूरोप का मुत्तहिदा लश्कर जिस शख्स की क़यादत में तैयार होकर आया उसे रिचर्ड कहते हैं। वो यूरोप का सबसे माना हुआ सालार था। रिचर्ड सलाहुद्दीन के मुकाबले के लिए आया और पूरे यूरोप के वसाइल, पूरे यूरोप का असलहा, पूरे यूरोप की दौलत, पूरे यूरोप के पादरी उसकी पुष्ट पर थे। और रिचर्ड को रिचर्ड लायनहार्ट यानी शेर दिल रिचर्ड कहा जाता था। उसने उस वक्त तक जितनी जंगें लड़ी थी कभी उसको शिकस्त नहीं हुई थी, लेकिन इसी वजह से दुनिया उसको रिचर्ड लायनहार्ट कहती थी। फिर वो रिचर्ड लायनहार्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी से टकराया और जब उसके लश्कर को शिकस्त हुई और वो सलाहुद्दीन के सामने आया, दोनों की दू बदू जंग हुई और उस जंग के अंदर रिचर्ड लायनहार्ट अपने घोड़े से गिर गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, वो गैरत की अलामत था कि उसने खुद रिचर्ड लायनहार्ट का हाथ पकड़ के उठाया और उसे कहा घोड़े पर आकर बैठो। सलाहुद्दीन की ये शान नहीं कि उसका दुश्मन गिर जाए और वो उसके ऊपर फिर हमला करे। दुश्मन तो ये है कि आओ दोबारा घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हारा मुकाबला करता हूं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है। लेकिन जब रीजनाल्ड, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसने एक बहन को थप्पड़ मार के कहा था कि तुम मोहम्मद का नाम लेती हो, उसको बुलाओ, वो आकर तुम्हें बचा ले, तो रीजनाल्ड सामने आया और सलाहुद्दीन ने कहा कि सुनो, मैंने आज तक अपने किसी दुश्मन का सर कैदी बनाकर नहीं उड़ाया, लेकिन खुदा की कसम तुम्हारा सर उड़ाऊंगा, इसलिए कि तुमने यहां ये कहा था कि बुलाओ मोहम्मद को, वो आकर तुम्हें बचाए। मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं मोहम्मद का अदना सा गुलाम हूं, तुम्हारा सर उड़ाऊंगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करते, और पूरी दुनिया को पता चले कि अगर किसी मुसलमान की चादर तार तार हुई, उसकी इस्मत पर हाथ डाला गया, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और इस जैसे उम्मत के सपूत मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े होंगे। मेरे अजीज भाइयों, ऐसी वो उम्मत है जिसको एक उम्मत कहा जाता है, जिसको नेक उम्मत कहा जाता है। ये उम्मत कौन सी है? उम्मत मुस्लिमा है, जिसने कलमा पढ़ा है, उस कलमे ने इनको एक कर दिया है। लेकिन आज मैं और आप देखते हैं कि ये मुसलमान कट और फट गया है, ये जुदा हो गया है, ये तफरकों में बट गया है, ये तासुब का शिकार हो गया है, ये अपने ही जैसे भाइयों को खाने, लूटने और मारने के पीछे पड़ गया है, और फिर हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत यानी वाहन इनके दिलों में पहुंच गया है। उसकी निशानी ये है कि काफिरों के साथ मुआहदे करते हैं, उनकी तीसी करते हैं, उनकी खुशामदियां करते हैं, उनके साथ जाकर बैठते हैं, लेकिन जब बात मामला मुसलमानों का है तो फिर ये नंगी तलवार हो जाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, आज के इन हालात में जब उम्मत मुस्लिमा पुरअशोभ हालात से गुजर रही है, वक्त का तकाजा यह है कि उम्मत मुस्लिमा को फिर से एक बनाया जाए, फिर से मुत्तहिद किया जाए, बिल्कुल उसी तरह इत्तिहाद जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम
جب آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی اس سے پہلے عربوں کی صورتحال کیا تھی کہ حالی نے اپنے اشعار میں کہا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے تھے، جنگوں میں کوئی عدل و انصاف نہیں ہوتا تھا، بس چیر پھاڑ ہوتی تھی، خون میں لت پت کیا جاتا تھا۔ پھر وہی اوس اور خزرج جو صدیوں سے جنگیں لڑتے آ رہے تھے، نبی علیہ السلام کا کلمہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے جب یہ مدینہ میں پہنچا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ صدیوں سے لڑنے والے اوس اور خزرج ایک ہو گئے، صرف ایک نہیں ہوئے بلکہ پھر یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے تو صورتحال یہ تھی کہ صاحبان نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، کوئی معاش اور کاروبار نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ سر چھپانے کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کلمے کی برکت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آپ کو مواخات کا واقعہ یاد ہے کہ جب وہ بھائی بھائی بن گئے اس کلمے کی برکت سے، پھر یہ ہوا کہ انصاریوں نے کہا کہ میرے دو گھر ہیں، ایک اپنے بھائی کو دیتا ہوں جو مکہ سے آیا ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ ہماری زبان ملتی جلتی ہے، نہ ہمارے معاملات ہیں، نہ ہمارے آپس کے مفادات ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر اگر میری زمینیں دو ہیں میں ایک اس کو دیتا ہوں، میرے گھر دو ہیں میں ایک اس کو دیتا ہوں، میری دکان اور کاروبار دو ہیں میں ایک اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ ایک ایسے بھی صحابی تھے کہ انہوں نے کہا میری دو بیویاں ہیں، اگر میرا بھائی عبد الرحمن کہے تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، یہ میرا بھائی شادی کر لے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے، اور یہ کلمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ جو جمعیت طلبہ عربیہ کا کارکن ہے، یہ دیوبندی کی بنیاد پر، یہ بریلوی کی بنیاد پر، یہ پنپیری کی بنیاد پر، یہ رفع یدین کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر لڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ آپ معاشرے میں جائیں، آج مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے کس بات پر کہ نماز میں ہاتھ اوپر باندھنا ہے یا نیچے باندھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز میں ہاتھ اوپر باندھنے اور نیچے باندھنے پر نہ لڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے۔ اگر دشمن ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے تو وہ بنیان مرصوص جس کو اللہ اور رسول نے اس کلمے کی بنیاد پر ایک امت کہا تھا، بنیاد مرصوص کہا تھا، ایک جسم کہا تھا، ایک عمارت کہا تھا، آج اسلام کا، ایمان کا، امت مسلمہ کے معروضی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دے۔ ہم پنجابی مہاجر پٹھان نہیں ہیں، ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں ہیں۔ ہمارا دشمن کسی دوسرے مدرسے کا عالم دین، کسی دوسرے مدرسے کا طالب علم، کسی دوسری مسجد کا امام اور خطیب نہیں۔ ہمارا دشمن وہ ہے جو ڈاکٹر عافیہ کا دشمن ہے، ہمارا دشمن وہ ہے جو امت مسلمہ کا اور قرآن کا دشمن ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج امت مسلمہ نے جب کہیں اپنا پڑھا ہوا سبق بھلایا، ایک دور عروج تھا، یہ حرم کی پاسبانی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اقبال نے کہا تھا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے الحمدللہ حرم پہ امریکہ حملہ نہیں کر سکتا، حرم پر اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ درست ہے کہ خانہ کعبہ پہ کافر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اقبال کا مقصد اتنا محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے بلند ترین مقصد میں ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا۔ کیوں لگایا تھا؟ کہ یہ محدود نعرہ نہیں، بلکہ حرم کی پاسبانی یہ ہے کہ قرآن کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا، اس کی عدالت کے نظام کو، اس کی سائنس و ٹیکنالوجی کے نظام کو، اس کی معیشت کے نظام کو، اس کے تجارت کے نظام کو، اس کے معاشرت کے نظام کو، اس کے تعلیم کو نظام کو پوری دنیا کے اندر اور مسلمان ملکوں کے اندر نافذ کرنا، یہ حرم کی پاسبانی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج سے پہلے امت مسلمہ کا ایک دور عروج تھا۔ اس دور عروج میں کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسلمان
صرف حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ نہیں میرے عزیز بھائیوں، آپ امت کا عروج کا دور اٹھائے، آپ کو پتہ چلے گا وہ قیادت سروں کی قیادت نہیں تھی، وہ نظام کی قیادت تھی۔ وہ حاکمیت دنیا کے حاکم بنانا نہیں تھا، بلکہ نظام کی حاکمیت تھی کہ پوری دنیا کے اندر معاشی نظام اسلام کا نظام تھا، پوری دنیا کے اندر عدالتی نظام اسلام کا نظام تھا، پوری دنیا کے اندر تعلیم کا نظام اسلام کا نظام تھا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ راجر بیکن کو اے آئی پر سرچ کر دیکھ لے۔ راجر بیکن یورپ سے ایک بندہ آیا تھا جو تعلیم حاصل میرے عزیز بھائیوں، آپ راجر بیکن امت مسلمہ کے عروج کا دور دیکھیں کہ جب امت مسلمہ اس پوری دنیا پر حاکمیت کرتی تھی اور مسلمانوں کے خلیفہ کا ایک خط پوری دنیا کو ہلا دیا کرتا تھا۔ جس طرح آج امریکہ ایک آواز لگائے تو دنیا کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو جاتا ہے اور مسلمان حاکم بھی ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک وقت وہ تھا کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ بغداد سے اور شام سے ایک لیٹر لکھتا تھا، اس لیٹر کی گونج پوری دنیا میں محسوس کی جاتی تھی اور پوری دنیا کو یہ لگتا تھا کہ مسلمان حاکم اگر کہیں کھڑا ہو گیا تو ان سے ٹکرانا ممکن نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا یہ عروج کا دور تھا جب یورپ تاریکی میں رہتا تھا، ڈارک ایجز کے زمانے میں تھا، یعنی یورپ پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ ڈارک ایجز میں تاریکیوں میں اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یورپ کی ڈارک ایجز کا زمانہ تھا کہ جب راجر بیکن شام میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا، اس نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، وہ وہاں پر پڑھتا رہا، لیکن کیونکہ مسلمانوں کا نظام پوری دنیا کے اندر تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مسلمان کے بچے کا امریکہ کا ویزا لگ جائے، آپ امریکہ کی ایمبیسی کے باہر چلے جائیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ برطانیہ کی ایمبیسی کے باہر جب ایک جوان کا ویزا لگا، وہ خوشی سے وہیں پر سجدے میں گر گیا، رب کے سامنے نہیں بلکہ برطانیہ کا ویزا لگنے پر خوشی سے سجدے میں گر گیا۔ وہ حج کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ جانے کی وجہ سے سجدے میں گر گیا۔ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ وہ ڈارک ایجز کا زمانہ تھا، امت مسلمہ کے عروج کا زمانہ تھا۔ لارڈ راجر بیکن پڑھنے کے لیے شام میں آیا، اس نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں واپس گیا تو وہ مسلمان نہیں تھا لیکن بدل چکا تھا، اربوں والے کپڑے پہنتا تھا، اربوں والا رومال رکھتا تھا، اربوں کی طرح بالوں کی کٹنگ کراتا تھا، اربوں کی طرح جوتے پہنتا تھا، اربوں کی طرح وہ کھانا کھاتا تھا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو یورپ والوں نے کہا یہ بڑا محقق ضرور بن گیا لیکن یہ راجر بیکن نہیں، یہ محمد بیکن ہے کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، امت کے عروج کا زمانہ تھا تو صورتحال کیا تھی کہ امت کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، سب کپڑے بھی، لباس بھی، کھانا بھی، بالوں کی کٹنگ بھی اور دنیا کے تمام طریقے امت مسلمہ کے چلتے تھے۔ یہ کیوں چلتے تھے؟ ایجادات جب دنیا میں سامنے آتی تو مسلمانوں کی ہوتی تھی، جس کو آج آپ اپنی سائنس کی کتاب میں ایویسینا پڑھتے ہیں۔ یہ ایویسینا نہیں، یہ انگریز نے نام بدلا ہے، یہ اصل میں ابن سینا ہے۔ جب یہ ابن سینا نے، جابر بن حیان نے، جب محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے ریاضی کو ایجاد کیا، یقین کیجئے کہ آج دنیا کا نظام کمپیوٹرائز نہ ہوتا اگر محمد بن موسیٰ الخوارزمی ریاضی کو ایجاد نہ کرتا۔ سائنس کو ایجاد کرنے والے، ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے والے، میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھنے والے، چاند پہ چمندے ڈالنے والے اور پوری دنیا میں ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، فلکیات سمیت دنیا کے تمام علوم میں رہنمائی کرنے والے جب مسلمان تھے تو اس وقت پوری دنیا مسلمانوں کی طرف دیکھتی تھی اور وہ ہمارے
عروج کا زمانہ تھا، اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو مادی ترقی میں اوپر ہو دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ آج آپ کا بچہ انگریز کا لباس پہن
फरमाए, हैरत है तुम पर कि तुमने एक साल में पूरा कुरान समझ लिया और मुझे देखो कि मेरी जिंदगी गुजर रही है और मैं अभी तक अल बकरा पे गौर करता हूँ, अल्लाह के अहकामात पे सोचता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, ये वो कलीद कामयाबी है जो हमारे असलाफ के पास मौजूद थी। अगर आपको यकीन ना आए तो देख ले कि यूरोप का, रूम का एक बादशाह रुतबेल था, वो मुसलमानों के मुकाबले में आया, उसका बड़ा लश्कर था, उसका बड़ा असलहा था, उसके पास दौलत भी ज्यादा थी, उसकी सल्तनत मुसलमानों से टकराने के लिए आई और मुसलमानों का लश्कर सिर्फ चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल था, लेकिन वो ईमान वाले, वो इखलास वाले, वो इस्तकामत वाले थे, अल्लाह और रसूल पर मजबूती के साथ ईमान लाने वाले थे। जब दोनों लश्कर टकराए, रुतबेल को शिकस्त हो गई, उसके लोग भाग गए, उसकी फौज तितर बितर हो गई। जंग के बाद रुतबेल ने अपना लश्कर इकट्ठा किया और उनसे मुखातिब होकर फौजियों से कहा कि क्या तुम्हारा असलहा मुसलमानों से ज्यादा नहीं था? क्या तुम्हारी तादाद मुसलमानों से ज्यादा नहीं थी? क्या तुम्हारी जिस्म और सेहत मुसलमानों से मजबूत नहीं थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब कुछ था। तो उसने कहा फिर शिकस्त क्यों हुई? सारे खामोश हो गए। मजमे से एक फौजी उठा, उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको बताता हूँ, वजह यह है कि जब हमने देखा कि रात को दोनों लश्कर आमने सामने हुए, उधर मुसलमानों का लश्कर था, इधर हमारा लश्कर था, हमारे लश्करी रात को शराब पीते रहे, गुलगुबाड़ा करते रहे, फहाशी और उरियानी करते रहे और किबर और तकब्बुर करते रहे। हमने देखा कि सामने वाले कैंप में जो मुसलमान कहलाते थे, उनके गाल अंदर पिचके हुए थे, उनके पेट अंदर घुसे हुए थे और वो बिल्कुल ऐसे जैसे तवाना ना हो, वो कमजोर और लागर लोग थे। लेकिन हमने देखा कि वो रात को शराब नहीं पी रहे, वो गुलगुबारा नहीं कर रहे, वो फाशी और उरियानी नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने रब के हुजूर दुआएं मांग रहे थे। फिर जब सुबह मुकाबला हुआ, हमने उनको देखा कि लागर लोग हैं, तादाद कम है, असलहा कम है, गाल अंदर घुसे हुए हैं, पेट अंदर घुसा हुआ है, ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हमारे लश्करियों ने गरूर और तकब्बुर शुरू किया। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो हमें पता चला कि उनका एक एक आता था, हमारी सफे उल्टा देता था, वो जुर्रत वाले और बहादुरी वाले थे। रुतबेल ने कहा, हाँ, ये वजह है जिस वजह से हमें शिकस्त हुई। मेरे अजीज भाइयों, उम्मत का ये दौर था कि जब गाल पिचके होते थे, जब पेट अंदर घुसे होते थे, लेकिन ईमान की कुव्वत थी, किरदार की कुव्वत थी, कुरान पे अमल का नतीजा था कि मुसलमान शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। इकबाल ने जो कहा कि शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कि पूरी दुनिया के लोग हमारे मुकाबले में खड़े होते थे, लेकिन हम उनकी शान और शौकत से दबते नहीं, बल्कि ईमान बढ़ जाता था और आगे बढ़कर लड़ते थे। मेरे अजीज भाइयों, आज जरूरत यह है कि आपने मुआशरे को तकसीम नहीं करना, बल्कि आपने मुआशरे को तालीम से जोड़ना है। और फिर दूसरा काम, मेरे अजीज भाइयों, आपने उम्मत मुस्लिमा को मेहनत की तरफ लेकर आना है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आना है। मैं सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह का अजीम शान कौल और सोने से लिखने के लायक कौल आपको बताने लगा हूं कि उन्होंने इस्लामिक रिसर्च एकेडमी कराची का इफ्तिताह किया। वो तकरीर एक छोटे से पंफलेट के तौर पर मौजूद है, आप उसको पढ़िएगा। जब उन्होंने फीता काटा, वहां पर तकरीर की, उन्होंने कहा कि ये उलूम और फनून काफिरों के नहीं होते, ये इस्लाम और मुसलमानों के होते हैं। जब मुसलमान इनमें तवज्जो करता है, मेहनत करता है, तरक्की करता है, फिर जब ये किताब लिखता है तो मेडिकल की किताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इससे शुरू होती है, फिर अंदर अहकाम आए तो हलाल और हराम के आते हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी कि देखो, चावल पूरी दुनिया में एक ही होता है, काबुल वाले अपने अंदाज में पकाते हैं, चाइना वाले अपने अंदाज में पकाते हैं, सिंध के लोग अपने अंदाज में पकाते हैं, चावल एक ही है। ये उलूम और फनून एक ही चीज है। जब मुसलमानों के पास होंगे तो इस्लाम
की तरक्की के लिए, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए ये इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर मुसलमान इनसे जी चुराएगा, मेहनत को छोड़ देगा, ये काफिरों के हाथ में जाएंगे, तो फिर हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं। आज आपका भाई, आपका मुसलमान डॉक्टर बनता है, किताबें पढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इलाज में हलाल और हराम क्या है। आज आपका भाई इकोनॉमिस्ट बनता है, बैंकिंग को पढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि सूद क्या है और इस्लामिक बैंकिंग कोई चीज है या नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों तमाम उलूम और फनून है। लिहाजा आप जैसे नौजवान सबसे पहला फैसला ये करे कि आपने खुद मेहनत करनी है। इकबाल ने कहा था, बाकियात इकबाल का एक कलाम बाकियात इकबाल है, यानी वो कलाम है जो कुलियात इकबाल में शामिल नहीं, लेकिन वो अब अलग से शाया हो चुका है। उसमें इकबाल कहते हैं, वही लोग पाते हैं इज्जत ज्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज्यादा, इसी में है इज्जत। खबरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना, बड़ाई बड़ों को इसी से मिली है। निकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी है, कोई समझे इसे तो अक्सीर है ये, बड़ा बन के रहने की तदबीर है ये। लिहाजा मेरे भाइयों, फिर आपने उम्मत को मेहनत से जोड़ना है, जवानों को, अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को, अपने शागिर्दों को आपने मेहनत की तरफ लेकर आना है। और फिर इसके साथ मेरे अजीज भाइयों, खैर की दावत को आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाना है और बिला तफरीक पहुंचाना है, बिला तफरीक के मसलक पहुंचाना है। आपने लोगों को इस्लाम से निकालना नहीं, खारिज नहीं करना, इस्लाम को दाखिल करने के लिए आया था। आज आपके मेहराब व मिंबर ने, आज आपकी मसनद हदीस व कुरान ने जब उसके सामने कोई मसला पेश हो तो फौरी तौर पर फतवा आता है कि इस्लाम से खारिज हो गया। मेरे अजीज भाइयों, आपने इस्लाम से खारिज नहीं करना, इस्लाम को पूरी दुनिया के लोगों को दाखिल करने के लिए आया है। लिहाजा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरी दुनिया को इस्लाम के अंदर दाखिल करना है। और मेरे अजीज भाइयों, इसी के साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आखिर में यह कहना चाहता हूं, तहरीक इस्लामी से अपने रिश्ते को मजबूत करें। हम यहाँ पर भी देखते हैं, हम पंजाब में भी जाते हैं, हमारे साथी हमें मिलते हैं, जमीयत तलबा अरबिया में रहा, रुकन बन गया, फला मुंतजिम बन गया, इतने साल मदरसे में तालीम हासिल की। जब हम पूछते हैं कि जमात इस्लामी के साथ क्या है, तो कहते हैं मसरूफ हूं, कारोबार में हूं, वक्त नहीं मिलता, रुकन नहीं हूं। मेरे अजीज भाइयों, ये बहुत बड़ी खयानत है कि जिस इदारे में आप तालीम हासिल करें, जिस तहरीक की सोच को आप अच्छा समझते हो, लेकिन जब मुआशरे में जाएं उस अच्छाई को छोड़कर अपने पेट के पीछे पड़ जाएं, अपने लालच के, अपने ओहदे के, अपने मफाद के हवाले अपने आप को कर दें। इसलिए आपने अपने आप को यहां से जाने के बाद, जमीयत तलबा अरबिया से जाने के बाद, आपने अपने आप को तहरीक इस्लामी का हरावल दस्ता बनाना है। ये तहरीक इस्लामी ज़हन में रखे कि लोग गलत फहमियां पैदा करते हैं कि ये अबुल आला की तहरीक है, ये अबुल आला मौदूदी की नहीं, ये मक्का और मदीना की तहरीक है, ये कुरान और सुन्नत की तहरीक है। आप अबुल आला मौदूदी को पढ़े, उन्होंने एक बात भी अपनी तरफ बुलाने के लिए नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए और कुरान और सुन्नत के लिए की है। लिहाजा आपने अबुल आला के लिए नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए करना है। और ये तहरीक अबुल आला की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, जमात इस्लामी की नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तहरीक है। लिहाजा आपने इस तहरीक के जरिए से अमली फील्ड में जाकर इस्लाम की नुमाइंदगी करनी है। और मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इकबाल का पैगाम आज मेरे और आपके लिए है। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है, आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले गयूर थे इतने कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गर्ज में क्या कहूं वो सहरा नशी क्या थे, जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। ये मेरे अजीज भाइयों, जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा, आपने बनना है, इसको समझना है, इसको याद रखना है और इसी की दावत देनी है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं, जो कहा सुना उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
لا